S. Chan presents educational video lectures as per the UGC curriculum. Absolutely free. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. Hello everyone. So today we'll be starting with group theory, and the first topic is group definition, abelian and non-abelian groups. This set is basically used in scanning. Everywhere we scan, so it means this set understanding for scanning is very important. So if you want to learn how to do scanning and also you should have understanding of group set. So what is this group? When we say a set is a group, we'll understand in this lecture. Hello everyone, welcome to S. Chand Academy. I am Dr. Seema Thakran. If you want to study group theory, examples, abelian, non-abelian groups, please refer to the book by Vikas publication. The ebook link is given in the description box below. So let's start with group theory and very first topic, which is group and its definitions. Group, its definition, example, abelian and non-abelian. So what is a group? I'll start with definitions. Group basically is a set, but it is a particular set in which some of the properties, there are some properties which that set holds, and then we say that it is a group. So let's start with group definition. So let G be a, I'll give notation to the set as G because G and G is group. To prove G group, what to do? Let G be a non-empty set and let star is the composition on G. Composition means that this is the operation on the group G, on the set I should say. It is not a group. Right now we are just taking it as a non-empty set. So this non-empty is very important. अगर आप किसी set को group proof कर रहे हैं तो आपके पास वो non-empty होना चाहिए. It means it should have some element and then there must be a composition on G. Then let this be a composition on G. Then if G satisfies the following properties. Number 1, closure property. Number 2, associative property. Number 3, existence of identity. I'll explain each and every property. Existence of identity element in G. Then number 4, existence of inverse element in G. अगर कोई भी सेट आपके पास है दैट इज नॉन एम्प्टी सेट, अगर ये चार प्रॉपर्टीज वो सेट होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन दैट इज स्टार. जनरली हमारा जो स्टार है वो डिफाइंड होता है. जनरली स्टार बेसिकली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जनरली वी टेक. These are the two standard compositions, addition and multiplication, which जो हम apply करते हैं to check whether a set is a group or not. So the very first property I am explaining, what is closure property. आप कैसे check करोगे closure hold कर रही है नहीं कर रही है? तो G आपका एक set है, G set है, non empty है. आप क्या करोगे? Take any two elements, let A and B belongs to G. Then if
आप उसका कॉम्पोजिशन लेते हो, अगर ये प्लस है, अगर स्टार प्लस है तो ए प्लस बी चेक करोगे, अगर ये डॉट है तो ए डॉट बी चेक करोगे। अगर ये ए स्टार बी एलिमेंट जी के अंदर आता है फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, देन वी से जी होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी आपको क्या करना है, जो भी सेट गिवन है उसके आप दो एलिमेंट्स लो और उस पर वो ऑपरेशन लगाओ। सपोज वो प्लस है तो एलिमेंट सपोज 2 and 3 है तो 2 + 3 को चेक करो कि वो उसके अंदर आ रहा है। इट्स नॉट ओनली फॉर 2 पर्टिकुलर एलिमेंट्स यू विल बी चेकिंग, ये आर्बिट्ररी एलिमेंट है। इट मीन्स हर एलिमेंट के लिए आपको हर 2 एलिमेंट के लिए चेक करना है कि ये स्टार ऑपरेशन ए स्टार बी उसमें बिलोंग करे, देन यू विल से क्लोजर होल्ड कर रही है। देन कमिंग टू एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मीनिंग है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कि आप उस सेट के 3 एलिमेंट्स पिक करोगे। लेट ए बी सी, दिस इज फॉर 3 एलिमेंट्स। देन आप क्या करोगे, ए स्टार बी स्टार सी, पहले आप इनको कंपोज करोगे, देन उसका जो कॉम्पोजिशन है वो इस एलिमेंट के साथ लोगे। देन दिस शुड बी इक्वल टू पहले कॉम्पोजिशन फर्स्ट 2 का, देन उसको थर्ड के साथ कंपोज करोगे। और ये भी हर एनी 3 एलिमेंट्स के लिए होगा। अगर ये तीनों होल्ड कर जाए, मतलब दिस इक्वालिटी यू गॉट, देन यू से दैट दी सेट इज द सेट जी होल्ड्स द सेट जी satisfies एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो 2 प्रॉपर्टीज हो गई हैं जिसमें आप क्लोजर यू कैन चेक एंड एसोसिएटिव यू कैन चेक। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपका थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है सेट के अंदर। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मीनिंग है एलिमेंट, इसका मीनिंग है कि आप कोई भी सेट एलिमेंट का उठाओगे, लेट ए बिलोंगिंग टू जी, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिसको आप उस एलिमेंट के साथ कंपोज करो तो वही एलिमेंट आ जाए। एंड इट हार्डली मैटर्स कि आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो फॉर ऑल ए इन जी। इसका मतलब है ऐसा एलिमेंट जिसको आप उसी एलिमेंट के साथ कंपोज करो और वही सेम एलिमेंट आपको मिले। सपोज आप प्लस ले रहे हो और आप रियल नंबर्स की बात कर रहे हो, तो 1 में क्या ऐड करो कि 1 आए, इट मीन्स 0। देन 2 में क्या ऐड करो कि 2 आए, इट मीन्स 0। कहने का मतलब है फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी दैट very important, note that identity element is always unique. Identity element is always unique. इसका मतलब एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, अगर कर रहा है तो is always unique. Now coming to existence of identity, you understood closure property, you understood associative property, you understood identity element unique होता है, this is one thing. Now identity के basis पे आप inverse define करते हो, so existence of inverse element. Now what exactly this means? So let A belongs to G, then if there exists B belonging to G such that A star B is identity. You can change the order for all A in G. The point is what this property is saying that कि आप एक एलिमेंट पिक करो, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और उनका जो कॉम्पोजिशन है ना ए स्टार बी, उसकी वैल्यू आइडेंटिटी आनी चाहिए, जो आप थर्ड प्रॉपर्टी में ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। एनी हाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक। इनवर्स ऑफ एवरी, इसका मतलब एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स आएगा। इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक। दिस प्रॉपर्टी इज स्टेटिंग अगर कोई भी सेट ये 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, वी विल से दैट द सेट इज अ ग्रुप। एनी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट satisfying all the above 4 properties
is called a group with respect to the composition. The composition is very, very important. With respect to the composition star. अब थोड़ा सा पर्टिकुलर वे में वी जस्ट टेक एग्जाम्पल. अब आपने देखा कि ग्रुप के लिए सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि वो ग्रुप जो है ग्रुप है. ग्रुप होने के लिए एक सेट को 4 प्रॉपर्टीज चाहिए. ग्रुप का नॉन एम्प्टी है होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट मीन्स 5 सेट आप नहीं लोगे, एम्प्टी सेट आप नहीं लोगे. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग एम्प्टी सेट. इट मीन्स कोई सेट आप ऐसा नहीं लोगे जो एम्प्टी है. इफ elements in the group are finite, what you will say? That the group is finite. That means it is a finite group. If number of elements in the group are infinite, you will say, if the number of elements in the group are infinite, then we say it is infinite group. The number of elements in a group written as this. It means if you are writing this symbol, this will give you how many elements basically the group has. So this is the notation for a group to write the elements. So definition we understood. Then when we say a group is finite, if it has finite number of elements, we say it is finite. Then infinite, if it has infinite number of elements. Number of elements, how we write that this mod of G, it means this notation is for it will give you number of elements in the group G. Now abelian and non-abelian groups. आपने 4 प्रॉपर्टीज चेक की. यू आर नाउ यू कैन से कि वो सेट आपका ग्रुप हो गया. व्हेन यू विल से कि वो अबिलियन और नॉन अबिलियन, देयर इज अनदर नेम आल्सो फॉर दिस, दैट इज कॉम्यूटेटिव एंड नॉन कॉम्यूटेटिव. दिस आल्सो वेरी कॉमनली रिटन इन द बुक्स एंड वी यूज दिस नोटेशन आल्सो. So abelian and non-abelian and commutative and non-commutative both are the same things. A group is said to be abelian if group means there is a set and there is a composition. Group means there is a set and there is a composition is said to be abelian if A star B is equal to B star A for all A, B and G. इसका मतलब है कि आपका जो 2 एलिमेंट आप पिक कर रहे हो उनके ऑर्डर को चेंज करो, कॉम्पोजिशन लगाओ तो आपके पास आंसर सेम आ रहा है. देन इन दैट केस यू से कि वो ग्रुप जो है वो अबिलियन है विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉम्पोजिशन. इफ अ ग्रुप इज नॉन अबिलियन, if it is not abelian. जो ग्रुप अबिलियन नहीं है that will be non-abelian. So we understood the definition. Theory part we have done for groups, properties, then abelian, non-abelian, finite, infinite, then what exactly we call a number of elements, how we notate. Now after the break we will be just doing the examples and we will see how to check whether a set is group or not, abelian or not, and whether it is finite or infinite. Hello students, welcome to Aschand Academy. I am Aditya and I will be teaching you botany for all the 4 semesters of your bachelor's curriculum.
आप जानते होंगे कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा एरिया एग्रीकल्चरल एरिया है और हमारे कंट्री में लगातार ऐसे रिसर्चर्स, ऐसे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स की ज़रूरत होती है जो प्लांट्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हों। और उसी की वजह से आपके बैचलर्स और मास्टर्स करिकुलम में कई बार बॉटनी एक सब्जेक्ट की तरह होता है। तो बैचलर्स के इसी कोर्स को पढ़ने के लिए हमने ये वीडियोस प्रिपेयर किए हैं एंड एस चांद एकेडमी विल बी ब्रिंगिंग दिस थ्रू देयर चैनल। इन वीडियोस में हम चारों सेमेस्टर्स के अलग अलग करिकुलम को कवर करेंगे, जिसमें पहले सेमेस्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अर्ली प्लांट्स के बारे में जैसे कि एल्गी और फंजाई के बारे में होगा। दूसरे सेमेस्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इकोलॉजी, प्लांट की इकोलॉजी पर्टिकुलरली और प्लांट की टेक्सोनॉमी। तीसरे सेमेस्टर में प्लांट की फिजियोलॉजी की बात की जाएगी और चौथे सेमेस्टर में प्लांट बायोकेमिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन होगा। These videos are going to be really interesting। इसमें बहुत सारे इनपुट्स, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस और एस चांद पब्लिशिंग की जो अपनी बुक्स हैं उनकी तरफ से दिए गए कंटेंट को एक्सप्लेन किया जाएगा। आई होप यू विल एंजॉय देम। सी यू देयर वेरी सून। Welcome back to S. Chand Academy. So before going to the break, we did definition of a group, abelian, non-abelian group, we know, but theoretically we did. Now I am taking examples to understand how to check a set, whether it is a group or not, or then further abelian or non-abelian. So example I am taking, let us consider set of integers, set of integers. दैट इज z। कैसे राइट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को? इट इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है। ऑब्वियसली जब आप एक सेट लोगे ये नॉन एम्प्टी है, क्लियरली इट इज नॉन एम्प्टी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये नॉन एम्प्टी है, लेकिन बिना कॉम्पोजिशन के आप इसको ग्रुप चेक नहीं कर सकते। सो कौन सा कॉम्पोजिशन लेंगे? यहाँ पे जो मैं कॉम्पोजिशन लूंगी दैट इज, लेट द कॉम्पोजिशन इज, कॉम्पोजिशन एंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉम्पोजिशन इज एडिशन। एडिशन का मतलब है आप एडिशन के रिस्पेक्ट में चेक करोगे। इट मीन्स आप चेक कर रहे हो इज अ ग्रुप और नॉट, is a group or not. This you are checking z and plus। अब पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे चेक करना, और 4 प्रॉपर्टीज है हमारे पास। पहले करते हैं क्लोजर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आप ये देखो कि आपका सेट है z प्लस। सेट आपको क्लियर होना चाहिए कि सेट है क्या एग्जैक्टली। दीज आर द एलिमेंट्स इन दिस सेट। कॉम्पोजिशन है प्लस। आप किसी भी 2 एलिमेंट को ऐड करो, 2 लो, -1 लो, 3 2, -3 -2। आप यू कैन ऑब्जर्व कि जो सम है 0 1 ले लो, एनी 2 एलिमेंट्स यू पिक फ्रॉम द सेट एंड यू कैन सी कि उनका जो सम है ना वो क्लियरली सेट के अंदर है। यू कैन ऐड एनी एलिमेंट, 7 -1। सो एवरी एलिमेंट जब भी आप प्लस साइन जो है उसमें अप्लाई कर रहे हो, द सम इज कमिंग इन दिस सेट। इट मीन्स क्लोजर क्लियरली होल्ड कर रही है। दिस इज हाउ यू चेक। आई होप यू अंडरस्टूड। कोई भी 2 एलिमेंट आपने पिक किए हैं, एनी 2 एलिमेंट यू पिक फ्रॉम दिस सेट ऑफ इंटीजर्स, और उसका जो सम है दैट इज जो आंसर है वो सेट के अंदर ही आ रहा है। इट मीन्स द सेट ऑफ इंटीजर्स holds closure property, holds closure property. This is how we check. It's not that every time we write ki 0 plus 1 for each element we will be checking. We can easily observe, but yes, for all the elements we have to check. And we are very sure for this set closure property will hold. Now second is associative. Closure के बाद the conclusion is कि associative property आप कोई भी 3 एलिमेंट, आप जब 2 एलिमेंट जब आप ऐड कर रहे हो, इट इज कमिंग इन द सेट, तो आप 3 ऐड करोगे, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। इट मीन्स वेरी ऑब्वियस दैट क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई भी 3 एलिमेंट आप पिक करो, 1 2 3, -1 -2 -3, बिकॉज 2 का एडिशन होल्ड कर रहा है तो 3 का इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो एसोसिएटिव इट इज वेरी ऑब्वियस after closure property that associative holds
वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी बेसिकली। क्लोजर सबसे मेन है, देन उसके बाद एसोसिएटिव ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाती है अगर आपकी क्लोजर होल्ड कर रही है। देन द क्वेश्चन इज, अब आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट पे। आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, इट मीन्स इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर किया आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे चेक करना है, आपको ऐसा एलिमेंट पिक करना है, लेट ए बिलोंगिंग टू जेड, आई एम जस्ट टेकिंग एनी रैंडम एलिमेंट। नाउ यू जस्ट टेल मी कि ए के अंदर क्या ऐड करें कि ए है, इतना आप क्विक फिगर आउट कर सकते हो। ए में मैं क्या ऐड करूं कि वही एलिमेंट आए, और सेट जो है वो एलिमेंट जो है वो जेड से पिक करना है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, एंड जीरो को आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, जीरो प्लस ए राइट करो या ए प्लस जीरो, यानी दिस एलिमेंट is the identity element. Let A belongs to Z, then there exists 0 belonging to Z such that A plus 0 is this, and it is for every A. आप किसी भी A में ऐड करो, A का मतलब है Z का कोई भी एलिमेंट पिक करो, it is holding very clearly, very clearly it is holding, so it means ये एलिमेंट आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। So आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, so this implies identity exists in Z। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो इनवर्स की चेकिंग नाउ विल बी डूइंग। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। जब आप एडिशन ऑपरेशन लगा रहे हो तो इसको आप एक अनदर नेम से भी कॉल करते हो, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ कमिंग टू, अगर एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है तो एडिटिव इनवर्स भी होना चाहिए, एंड लेट्स सी इफ इट इज होल्डिंग और नॉट। सो लेट ए बिलोंगिंग टू जेड, देन अभी आई एम नॉट राइटिंग दैट एलिमेंट, बट यू कैन ईजिली फिगर आउट ए के अंदर आप क्या ऐड करो कि जीरो आए। ऑब्वियसली ए में से आप माइनस ए करोगे तब भी आपके पास जीरो आएगा। ये आपका बेसिक जो आपका मैथमेटिक्स है उसके अकॉर्डिंग इट इज़ वेरी क्लियर कि ए 1 में क्या ऐड करोगे कि जीरो आएगा, ऑब्वियसली -1, 2 में क्या ऐड करोगे -2, इट इज़ अंडरस्टूड। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि 1 के करस्पॉन्डिंग -1, 2 के करस्पॉन्डिंग -2 सेट के अंदर है या नहीं। इट इज़ वेरी क्लियर इन द सेट, आपको पता है कि 1 और -1 दोनों एग्जिस्ट करते हैं सेट के अंदर, जेड इंटीजर्स के अंदर। इट मीन्स आपकी जो एडिटिव इनवर्स है ना वो भी सेट के अंदर है। सो दिस implies additive inverse exist for all elements in Z दिस implies चारों प्रॉपर्टीज हो गई हैं, और आपने देखा कि अगर सेट ऑफ Z दिस यू मेमोराइज एनी हाउ व्हेन यू डू द एग्जाम्पल्स। इंटीजर्स के अंदर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एंड देन सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर जो 1 का इन्वर्स है -1 एडिटिव इन्वर्स। सो इट मीन्स Z प्लस, दिस इज हाउ यू राइट, दिस इज द नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन इज अ ग्रुप, यानी ये प्लस के रिस्पेक्ट में क्लियरली ग्रुप है। अब सेम ग्रुप मैंने एक सेट लिया एंड आई हैव चेक्ड ऑल द प्रॉपर्टीज, इट इज होल्डिंग एनी हाउ वेरी क्लियरली। नाउ कमिंग टू इसी ग्रुप को चेक करते हैं कि अबेलियन है या नहीं है। सो अबेलियन पार्ट भी इसी में चेक करते हैं, अबेलियन ग्रुप और नॉट, विच ग्रुप वी आर टॉकिंग अबाउट, Z प्लस। अब आप देखो Z के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, आपको सिर्फ चेक करना है कि A प्लस B प्लस C, वहां पे मैंने स्टार यूज किया था, नाउ आई एम पर्टिकुलरली अप्लाइंग प्लस बिकॉज मेरा प्लस इज नाउ वेल डिफाइंड। आप कोई भी दो एलिमेंट्स, कोई भी एनी 2 एलिमेंट्स यू पिक, आप देखो हमेशा सेम आएगा। आप कोई भी 2 एलिमेंट पिक करोगे ना, ऑर्डर आप चेंज कर लो, इट विल नेवर डिफर 5 5 0 0। इसका मतलब क्लियरली दिस ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, कॉम्यूटेटिव ग्रुप। सो वी कैन से Z प्लस इज अबेलियन ग्रुप। नाउ कमिंग टू इसी सेट के अंदर आई एम जस्ट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मीनिंग है एक सेट पे आप दूसरा कॉम्पोजिशन भी चेक कर सकते हो। इट माइट बी दैट वो उस कॉम्पोजिशन के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप हो जाए। सो सेम क्वेश्चन, एंड नाउ आई एम टेकिंग माई composition as multiplication. So this time I'm taking multiplication. Multiplication के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। So closure,
सेट आपका वेरी क्लियरली दिस इज द सेट। अब क्लोजर के लिए क्या करना है, दिस टाइम इट्स नॉट एडिशन आप करोगे, इस पर आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी आपको क्या करना है, a डॉट बी एनी हाउ z के अंदर आ जाए, मल्टीप्लाई करो एलिमेंट्स को, देखो आप जस्ट मल्टीप्लाई एंड जस्ट सी फॉर एनी एलिमेंट, इट्स नॉट अगर मैंने प्लस माइनस 100 राइट नहीं किया है तो यू कैन नॉट डू दैट, आप कितना भी थिंक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स बिकॉज दिस सेट इज इनफाइनाइट। Now any element you are multiplying 1 2 2 3 2 into 100 200 the result is coming, so you can see very clearly जो product है ना वो clearly z के अंदर आ रहा है and it is for all a b in z। आप कोई भी माइंड में सोचो यहाँ से, लेकिन पिक करना है एलिमेंट यहाँ से सेट के अंदर से। सो आपने अगर सपोज 1000 पिक किया, 1000 को -1000 से मल्टीप्लाई कर लो, अगेन द रिजल्ट इज बेसिकली इन दी सेट। सो क्लोजर इज होल्डिंग 1। नाउ एसोसिएटिव ऑटोमेटिकली होल्ड करती है, आपको बताया मैंने कि क्लोजर अगर होल्ड कर जाती है, जब 2 का प्रोडक्ट होल्ड कर रहा है तो 2 के प्रोडक्ट को आप एक सिंगल एलिमेंट की तरह कंसिडर कर सकते हो और इसको आप एसोसिएटिव में सिर्फ एक और एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो। दिस इज तो अंडरस्टूड है कि वो ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगा। कहने का मतलब है ये भी तो एक एलिमेंट बन गया ना अब, तो क्लोजर के अकॉर्डिंग ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर होगी एंड दिस विल बी इक्वल 101%, इट विल बी इक्वल ऑल्सो। सो ये होल्ड कर गया। मेन आता है कि इनवर्स और आइडेंटिटी होल्ड कर रही है नहीं कर रही है। कमिंग टू द पॉइंट नाउ फॉर आइडेंटिटी, लेट्स सी कि आइडेंटिटी अब इस बार मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। लास्ट एडिटिव में आप पर्टिकुलर हो जाते हो, अदरवाइज इफ यू कॉल इट आइडेंटिटी एलिमेंट इट्स फाइन। सो आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, कैसे फिगर आउट करना है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, एक एलिमेंट ए लो आप, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करो कि वो सेम नंबर आ जाए। आपको भी पता है कि 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 ही आए, ऑब्वियसली इट इज 1 ओनली। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आए, वेरी अंडरस्टूड कि 1 है। सो इट मीन्स फॉर एवरी ए देयर एग्जिस्ट 1 इन z सच दैट वो उसी एलिमेंट के इक्वल आएगा एंड इट इज फॉर ऑल ए इन z। इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। So this means identity element exists now the last property if in case it holds, last property आपकी है inverse element existence। inverse element obviously this will be multiplicative inverse। अब आपको क्या करना है, एक एलिमेंट में आप लेट कर रहे हैं, ठीक है, एक एलिमेंट ए लिया, अब मुझे सिर्फ ये चाहिए कि उस एलिमेंट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरी आइडेंटिटी आए। आइडेंटिटी 1 थी ना यहाँ पे, सो मेरी आइडेंटिटी 1 आंसर कब आएगा, जब मैं इसको ऑब्वियसली 1/a से मल्टीप्लाई करूंगी। इट्स वेरी अंडरस्टूड। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, लेकिन एनी हाउ दिस एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन z, दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन सेट ऑफ इंटीजर्स। कहने का मतलब है इनवर्स एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट एंड फॉर लाइक एक सिर्फ सिंगल एलिमेंट ऐसा है कि 1 जिसके लिए एग्जिस्ट कर रही है, ओनली 1 एलिमेंट। कई बार क्या होता है कि आप एक एलिमेंट के लिए चेक करके यू गेट वेरी श्योर कि हाँ हाँ ये ग्रुप है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, फॉर एवरी एलिमेंट यू शुड चेक। सो 1 के लिए 1 एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज 1 into 1 1 होता है, तो एक ही सिंगल एलिमेंट है इसमें जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 2 3 2 के लिए 1/2 सेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो इनवर्स एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट 1। एक से 1 ऐसा है जिसके लिए एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। अब पॉइंट इज कि अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल होगी तो ग्रुप नहीं होगा। सो ऑन वन सिंगल सेट आई चेक्ड फॉर प्लस, व्हेन आई वाज चेकिंग इट इज वेरी क्लियरली होल्डिंग। नाउ फॉर मल्टीप्लिकेटिव यू कैन सी फोर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, सो इट इज नॉट ग्रुप। And with respect to which operation? For multiplication. Anyhow, so this is not group
अगर आप इसको लेकिन अबिलियन चेक करोगे ना, ये अबिलियन हो जाएगा। अबिलियन का मीनिंग है कि आप a डॉट b डॉट a के इक्वल है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, कभी कभी बच्चे डायरेक्ट आंसर कर देते हैं कि a डॉट b डॉट a, यानी मल्टीप्लिकेशन में दिस होल्ड्स गुड इन z, और वो सीधा एग्जाम्पल इसको भी दे देते हैं कि ये अबिलियन ग्रुप है। इट इज नॉट इवन अ ग्रुप, तो आप अबिलियन की बात ही नहीं कर सकते। इट इज नॉट ए ग्रुप। तो अबिलियन का क्वेश्चन तब आएगा जब आपका सेट ग्रुप होगा। तो एक ग्रुप को पहले चेक करो कि वो ग्रुप, एक सेट को चेक करो कि पहले वो ग्रुप है, देन कम टू द पॉइंट कि वो अबिलियन या नॉन अबिलियन है या नहीं है। सो हमारे पास एग्जाम्पल आया तो ये वाला जो पहले वाला ग्रुप था वो अबिलियन था। नाउ द थिंग इज कि नॉन अबिलियन ग्रुप्स के लिए अगर आप बात करें, दैट इज, अगर मैं एक सेट लेती हूँ, आई नो इट इज कॉम्प्लिकेटेड वन, and the set is this, and where ABCD belongs to R, real numbers लिए हैं, and you can see ये matrix notation ली है, 2 by 2 matrices का अगर आप set लो ना, और determinant of all the matrices यानी AD minus BC is non-zero, ये वाला सेट इज नॉन अबिलियन बिकॉज जब आप दो मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो, एनी टू मेट्रिसेस A डॉट B not equal to B dot A. So this is the example of the non-abelian group. और ये आप composition पे please particularly mind करिएगा. In future lectures also composition will matter in each and every group. This time I am taking multiplication the composition, क्योंकि अगर आप set of matrices लोगे लेकिन with respect to addition लोगे, ये abelian हो जाएगा. I am giving you the example for a non-abelian group. तो non-abelian में you have done matrices part in your 12th class. आपने देखा था कि a dot b और b dot a दो matrices का order change करो तो it is not that it will always be same. So in this lecture we learned what is a group, definition of a group, then examples we did, and after that we did abelian and non-abelian groups with examples. If you want to study group and its examples, non-abelian and abelian groups, please refer to the book by Vikas publication. The ebook link is given in the description box below. Don't forget to share, like and subscribe S Chand Academy. Don't forget to press the bell icon for the future updates. Thank you. Stay connected. Stay tuned. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.